Hello bachcho, in previous lecture I told you about the respiration, its definition and its types. Okay, and little bit we have discussed about the types of external respiration, that is inspiration and expiration, and in gases exchange or inspiration, expiration or external respiration in various organisms. Okay, this we had discussed in previous video. So our this portion is left. Okay, general discussion. So internal respiration or cellular respiration, this we are going to study today. Okay, so internal respiration or cellular respiration, that I told you, internal cellular respiration is known because it takes place inside the cell in mitochondria. तो पहली चीज क्या हो जाएगी, takes place inside the cell. ये कौन सी जगह हो सकती है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. पढ़ा रहे हैं ना 9th क्लास में. साइटोप्लाज्म इज द साइट वेयर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेलुलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एज it is responsible for the production of ATP, that is adenosine triphosphate. Okay बच्चों, so internal respiration I told you it is of two types. Okay, कौन कौन से हैं, on the basis of availability of oxygen, on the basis of use of oxygen, it is of two types. Okay, तो यहाँ हम एक क्या बना लेते हैं, अच्छा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं. I know फ्लो चार्ट्स आर इजी, तो यहाँ एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं. तो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन की. ओके, तो टू टाइप्स हो जाएंगे इसके. कौन कौन से भाई, याद करो कौन कौन से हो सकते हैं. यस, वन इज एरोबिक एंड अनदर वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, क्या खास बात है यहाँ, खास बात क्या है, जो खास बात है उसी को समझ लेते हैं. कि यहाँ होगी O2 इज प्रेजेंट और यहाँ होगी O2 इज एब्सेंट. ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया. ओके, अब होता क्या है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है दैट इज ग्लूकोज. ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, व्हाट इज सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, तो ग्लूकोज. तो इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस, C6H12O6. दिस ग्लूकोज will convert into pyruvic acid. Okay, and what is the special feature of pyruvic acid, that pyruvic acid is 3 कार्बन कंपाउंड. ग्लूकोज में कितने कार्बन है भाई, 6. ओके, तो पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन इज प्रेजेंट एंड कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे. ऑफ कोर्स ही बात है कि 3 एक में, तो 6 के कितने बन जाएंगे, 2 molecules of pyruvic acid will form from glucose by the process known as glycolysis. कोई पेन ढंग का सा हो तो यस. तो ग्लूकोज प्रोसेस कौन सी होने वाली है, ग्लाइकोलाइसिस. नो यूज ऑफ O2. और कहाँ होगी ये प्रोसेस बच्चों, ये प्रोसेस होने वाली है साइट. साइट कौन सी है भाई, साइटोप्लाज्म. पेन ही खत्म, तो किससे लिखा जाए, किससे लिखा जाए, वेट फॉर 1 second. ओके, आई एम गोइंग टू टेक, यस, सो इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. नाइस पेन, साइटोप्लाज्म में होगा. ओके, तो 3 पॉइंट तो हमारे यहाँ हो गए कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस.
in which no use of O2 and it takes place in cytoplasm, and after this product is 3 carbon compound pyruvic acid and there is preparation of synthesis of 2 molecules of pyruvic acid. ओके तो ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। अब दिस pyruvic acid क्या होने वाला है इस pyruvic acid का? यस, this pyruvic acid, if oxygen is present, this pyruvic acid moves to mitochondria, okay, and there one process takes place, that process known as Krebs cycle। पहली चीज use of O2, दूसरी बात, और साइट कहाँ होने वाली है? साइट होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बच्चों, सो दिस pyruvic acid goes to mitochondria, enters to mitochondria, and by the process of Krebs cycle, this pyruvic acid oxidizes into CO2 plus water plus ATP are the end products। ओके, और ये क्या बन जाएंगे हमारे एंड प्रोडक्ट्स। ऐसे जब आपका होने वाला है anaerobic respiration, when anaerobic respiration takes place where oxygen is not required, substrate is same, okay, process will be same, conversion of glucose into pyruvic acid in cytoplasm without use of oxygen, and the process known as glycolysis. So what is the fate of this pyruvic acid? If oxygen is present, it will enter to mitochondria. If oxygen is not present, तब क्या होने वाला है? Then this pyruvic acid remains in cytoplasm. तब ये क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। ओके, एंड 3 processes may takes place. 3 processes हो सकती हैं अलग अलग जगहों पर। कौन कौन सी प्रोसेस है भाई? वो प्रोसेसेस हो सकती हैं कौन सी? यस, पहले तो हम लिख लेते हैं ग्लूकोज। यहां तक प्रोसेस बच्चों सेम होने वाले। ग्लूकोज विल चेंज इनटू पायरुविक एसिड। इस कन्वर्जन में भी बच्चों थोड़ी सी एनर्जी तो बनेगी, तो हम यहां लिख लेते हैं पायरुविक एसिड प्लस व्हाट? यस, एनर्जी। तो हियर ऑल्सो पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, देन प्रोसेस सेम होगी, ग्लाइकोलिसिस है, बेकार पेन है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होने वाला है? नो यूज ऑफ ऑक्सीजन। साइट क्या रहने वाली है? साइट इज साइटोप्लाज्म। सो व्हाट इज कॉमन कि वेदर देयर इज एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ दिख रहा है ना, वेदर देयर इज एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, first step is common and that common step is known as glycolysis. Lysis means breakdown and glyco means glucose, means breakdown of glucose into pyruvic acid. This step is common. तो हम उसमें लिख लेंगे पॉइंट में कि glycolysis is common for both aerobic as well as anaerobic cellular respiration. Okay, this pyruvic acid का फ्यूचर होने वाला है 3। क्या क्या फ्यूचर है भाई इसका? फर्स्ट फ्यूचर है जी आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। किस में होने वाला है ये? यीस्ट, यूनिसेल्युलर फंगस। ओके, यीस्ट में विदाउट द यूज ऑफ O2 रिमेन्स इन साइटोप्लाज्म। सेकेंड कहाँ होने वाला है जी आपका? इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन लैक्टोबैसिलस।
बैसिलस, और थर्ड इज इन मसल्स। मसल सेल्स पढ़ी थी ना 9th क्लास में, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड, कार्डियक, सो वहीं की बात चल रही है। ओके, मसल्स में, ओके, स्केलेटल मसल्स में। तो होने क्या वाला है, चाहे वो लैक्टोबैसिलस है चाहे वो मसल्स हैं, होगा सेम। ओके, तो इसको बोलेंगे यीस्ट में जो होने वाला है दैट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फर्स्ट थिंग विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ लिख लेते हैं, नो यूज ऑफ O2। सेकेंड क्या होगा, साइट, चाहिए है चाहिए चाहिए, साइट होगी आपकी साइटोप्लाज्म, और होने क्या वाला है, यीस्ट में जो बनने वाला है एंड प्रोडक्ट्स, यीस्ट में क्या बनने वाले हैं, इथेनॉल, और ये क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड कितने का है भाई, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो ये कैसा है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन कहाँ गया, प्लस CO2, तो एक कार्बन कहाँ गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, और प्लस क्या होगी, एनर्जी। लैक्टोबैसिलस एंड मसल्स में क्या होगा, क्या होने वाला है बच्चों, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड के साथ में और क्या बनने वाली है बच्चों, एनर्जी। ओके, एनर्जी बनेगी, और जो लैक्टिक एसिड है दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड। ओके, 3 कार्बन कंपाउंड, तो जो आपका पायरुविक एसिड है वो भी 3 कार्बन कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड है वो भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ CO2। जैसे कि यहाँ ईस्ट में CO2 प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ CO2 प्रोड्यूस नहीं हो रही, यहाँ CO2 दिखाई दे रही है, यहाँ CO2 नहीं बनेगी, बिकॉज इथेनॉल इज 2 कार्बन कंपाउंड एंड लैक्टिक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड। ओके बच्चों, सो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ओके, समझ में आ गई कहानी। और दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखना है यहाँ पर बच्चों, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, glycolysis is common for both anaerobic, दिखाई नहीं दे रहा होगा, common for both anaerobic and aerobic respiration। was that clear? तो आप वीडियो को watch this video again and again, prepare your notes, revise your notes and practice questions. Till then, bye bye.